So, hey everyone, this is Karan. So, we have started the batch scripting, and from the previous video, we have learned some loops like while and until. So, without wasting time, let's get started. So, जैसे कि मैंने बताया, हमने पिछले वीडियो में कुछ लूप्स देखे, तो यहाँ पे हम मेन लूप्स के बारे में बात करने वाले फॉर लूप, वेयर यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है वाइल लूप और फॉर लूप में कि हम फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे और वाइल लूप यहाँ पे both are the same and just syntax are different. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. So the for loop, you can say that for loop is the fundamental control structure that allows you to repeat the set of commands at a specific time, or you may say number of times, and it is very super useful when you need to automate the repetitive task. Like अगर तुम्हें कुछ multiple commands run करवाना है या फिर किसी specific time पे कुछ चीज़ें run करवाना है, तो बैच स्क्रिप्टिंग में फॉर लूप आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा. या फिर मल्टीपल फाइल्स को आपको ओपन करना है, तो मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा. तो यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया, फॉर लूप जस्ट हम एक ही चीज़ को अगर या फिर हमें कोई बार बार चीज़ करना है तो हम फॉर लूप में लगा देंगे, वो फॉर लूप कंटिन्यू करते जाएगा, राइट. So this is the basic syntax for the for loop, here for, and here we are going to declare the variable like x or anything you want. And in list, for example, we have the list and we will assign that variable to the list. So this is the basic command. Don't worry, I will show you the example, then you will get it. So this is our first example, and let's move to the example. So first we are going to write the for, and as I said, the variable. So I will take x in and I will give the some numbers. So I have given here 7 numbers, and I will tell the bash scripting do now, because I said for. जैसे कि हमने while में भी देखा था, while लगाने के बाद हम कंडीशन देंगे do. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है. Now we have got some indentation, so here I will say echo, and I will try to call this variable x. So as you know, we are going to do this dollar symbol x, and as we have done, we have to tell done. So let me explain this. तो फॉर लूप यहाँ पे x है, x in 1, तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी इनमें से 1, राइट. और जैसे ही 1 होगा तो क्या करना है, डू. यहाँ पे एको कर देगा नंबर, ये तो स्ट्रिंग है, और x को कॉल कर देगा. x की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा. डन हो गया. फिर से वो जाएगा, चेक करेगा कुछ और है आगे, 2 है. ऐसे लाइन बाय लाइन जाएगा, 2 3 4 ऐसे नंबर प्रिंट करते जाएगा. सो हम इसे सेव करते और एलएस करते, तो हमने जो कोड लिखा है वो इसके अंदर है. So as you can see, the number 1, number 2, number 3 and till number 7 we have executed the command. So this was the basics for the for loop. Now let's see the more examples so you can get it, and more things you can do from the for loop. Now here we have some commands that we are executing in the bash. Like हम डेट करेंगे तो डेट दिख जाता है, अब टाइम करेंगे तो टाइम अपडेट हो जाता है, और हुए मैं बता देता है कि हम किस यूज़र से लॉगिन है. लेट्स ट्राई डायरेक्टली कमांड. जैसे कि हमने कहा डेट. ओके, सो डेट मॉड्यूल शायद हमारे पास इंस्टॉल नहीं है. ओके, सो डेट हमने किया, वो डेटा मैंने लिख दिया था. सो नाउ इट्स शोइंग द डेट, एंड इफ आई से, सो हियर वी हैव टाइम. नाउ who am I? It's saying Caron. So these are the basic command and their outputs. Now we will convert it in the bash scripting. So let me finish the code, then I will explain you. So here I have completed the command, and let me explain this. So यहाँ पे variable हमने declare किया है, and here we have some data in the variable like date, uptime and who am I, right? तो यहाँ पे हमने फॉर लूप को कंसिडर किया है, लाइक वी हैव डिक्लेयर द ये वेरिएबल CMD. यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो. पिछली बार तो हमने x किया था, राइट. तो यहाँ पे इन और डॉलर हम इसको कॉल कर रहे हैं, और कमांड, और यहाँ पे हम इंडेक्सिंग को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको एक साथ सभी को यूज़ नहीं करना, राइट. हमें 1 by 1 करना है. तो यहाँ पे मैंने ऑल दे दिया, सबको यूज़ करना है, लेकिन स्टार्टिंग से. सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंडेक्सिंग 1. अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से, राइट. 0 1 2.
आप एरे वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे हम इंडेक्सिंग का मैंने अच्छे से डीप में समझाया। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू आएगी स्टार्टिंग का, जो कि डेट 0 आ जाएगा, और 0 पे वैल्यू क्या है, डेट। तो CMD में वैल्यू आ जाएगी डेट। ओके, तो यहाँ पे एको करेगा रनिंग, ये तो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट, क्योंकि हम स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं। और इसे हमने बाहर पास किया क्योंकि हम डेट को रन करवाना चाहते हैं अपने टर्मिनल में, तो ये रन कर जाएगा टर्मिनल में। उसके बाद हम डन कर देंगे, फिर 1 बाय 1 अपडेट होगा। यहाँ पे अप टाइम हुआ मैं, तो इसके जगह अगर आपको कोई टास्क है, या फिर आप सिक्योरिटी स्कैन या फिर nmap स्कैन या फिर कोई भी बड़ा टास्क कर रहे हो बार बार, तो आप यहाँ पे वो कमांड्स लिख सकते हो, जस्ट मैंने हिंट दिए। तो लेट मी सेव दिस कमांड एंड लेट्स रन। सो यहाँ पे सबसे पहले डेट का कमांड रन हुआ, उसके बाद अप टाइम का, फिर हुआ हु एम आई, और उनके आउटपुट्स आप देख सकते हो। सो इस कमांड से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जो आपको डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सो लेट मी राइट दिस कोड फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इट। सो दिस इज़ वेरी स्मॉल स्क्रिप्ट राइट, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया और इन टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे स्टार इसलिए दे रहे, कोई भी नाम का फाइल हो राइट, बस वो txt फाइल होना चाहिए। यहाँ पे आप लॉग फाइल या फिर PDF या फिर इमेज कुछ भी दे सकते हो, और हम एको कर देंगे अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है हमारे सिस्टम में तो। सो अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। ओके, तो ये कह रहा है प्रोसेसिंग something.txt। तो मैं ls करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास कितने टेक्स्ट फाइल है और क्या क्या नाम से। तो ये सब तो SH यानी कि बैश स्क्रिप्टिंग है, ये लॉग फाइल से। यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है जो कि है txt। तो आप किसी फोल्डर में हो जहाँ पे 50-60 ऐसे फाइल है, आप एक एक करके ढूंढ रहे हो उसमें से txt फाइल कहाँ पे है। जैसे कि फ्लैग वगैरह आप जब CTF वगैरह खेलोगे तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको वो वाला एग्जांपल अच्छा लगा, और मैं एक अलग सिंटैक्स आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। So this is the new syntax, and let me write this command and I will explain you. Now this is syntax for the for loop, and ये हम C लैंग्वेज या फिर C++ वगैरह जब आप लैंग्वेज करोगे, ये वाला सिंटैक्स हम उसमें फॉलो करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। यहाँ पे हम इसे मान लो I एक वेरिएबल है, आप जब C वगैरह पढ़ोगे तो लोग उसे आइटरेशन वगैरह कहेंगे, जो कि हमेशा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे I वेरिएबल है और हम चाहते ये फॉर लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चले। फर्स्ट कंडीशन हम बताएंगे ये लूप 1 से लेके 5 तक चले, या फिर 5 से नीचे, जब तक i की वैल्यू 5 से नीचे या फिर 5 के बराबर है तब तक इस लूप को चलने दो। तो यहाँ पे करना क्या है, हमेशा i++, तो 1 है 1 को प्लस कर दो 2, 2 है 2 को प्लस कर दो, ऐसे i++ यानी कि i+1 है। ओके, और उसको हम प्रिंट करवा देंगे i के। तो सबसे पहले हमारी i की वैल्यू है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर से जाएगा, ये इंक्रीमेंट कर देगा, 1 को कर देगा 2, और ये चेक करेगा 2 5 से छोटा या फिर 5 के बराबर है, हाँ 5 से छोटा है तो प्रिंट कर दो 2, 3 4 5 ऐसे चलेगा। 5 भी हो जाएगा क्योंकि वो 5 की इक्वल है। जब 6 होगा तो ये चेक करेगा 6 तो 5 से छोटा भी नहीं और 5 के बराबर भी नहीं है, तो बस वहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा। सो लेट मी सेव एंड लेट रन द कमांड। सो नाउ हियर यू कैन सी द आउटपुट फॉर दिस वेरिएबल। दिस इज न्यू सिंटेक्स फॉर द फॉर लूप। यहाँ पे गौर करना, हमने यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस यूज़ किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द लूप फॉर द रनिंग मल्टीपल स्क्रिप्ट्स। लाइक वी हैव 3-4 स्क्रिप्ट्स पढ़े और उनको 1 बाय 1 रन करना है, तो हम इस वाले लूप का यूज़ करेंगे, आई मीन स्क्रिप्ट का। So now here you can see I have declared the for loop, and here we have the file name. Let me show here. So here you can see we have some bash script like bash2 sh, bash3 sh, bash1, और इनके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स है जो कि बैश स्क्रिप्टिंग में कुछ बेसिक्स है। तो आप कुछ भी उसके अंदर स्क्रिप्ट्स आपके काम के हो जो भी, उसे रख सकते हो। सो यहाँ पे 3 हमारे पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स है और उसे हम 1 बाय 1 रन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एको करेंगे और जो फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है राइट। सबसे पहले उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसको असाइन होगा, उसके बाद ये रन होने के बाद इसको। तो सबसे पहले किसको असाइन हुआ, इसको राइट। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा बैश स्क्रिप्ट 1, और उसके बाद हम कमांड पास कर रहे बैश स्क्रिप्ट, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे रन कर रहे थे ना,
बैश और फाइल का नाम, ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे बैश और फाइल का नाम ये यहाँ से ले लेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद ये इस पे चला जाएगा और इस पे, ऐसे 3 फाइल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल फाइल्स अगर आप देते हो तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। नाउ आई विल रन दिस। So here we got the error like I have written spelling wrong for the script. Let me correct it. So now you can see there are the 3 scripts and I was facing some kind of error just due to the spelling mistake. Now you can see I have executed successfully. Now I have some argument. This was the first script and from this second script, and this is the game like we have to guess from 1 to 100. 1. So it will go continuously with the loop and I cancel. Because of this loop we can run the multiple scripts like script 1, script 2 and script 3, and this was the basic example. Now this is the advanced example and this is the last, don't worry. After this we will wrap this video. Now this is the next example और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप है और यहाँ पे हम लॉग फाइल को चेक करेंगे और उसके अंदर कोई भी एरर है वो पॉप कर देगा, और नहीं है तो फिर उसको हम इस पाथ पे मूव कर देंगे उस एरर को। नाउ यू कैन सी द फॉर लूप, दिस इज़ द वेरिएबल, और हम चेक करेंगे किसी भी नाम का फाइल हो, बस वो लॉग फाइल होना चाहिए उसका एक्सटेंशन। यहाँ पे हम डू करेंगे एको प्रोसेसिंग, अगर लॉग फाइल उसे मिला तो, और वो फाइल को चेक करेगा। अगर उसे ये टेक्स्ट मिला उस फाइल के अंदर, फिर वो यहाँ पे पॉप कर देगा कि इस फाइल के अंदर एरर है और सेंडिंग अलर्ट ऐसा हमें लिख देगा। अगर एरर नहीं मिला तो ये सीधा सीधा हमें कह देगा नो एरर, और फाइल को मूव कर देगा वो इस पाथ पे, राइट। उसके बाद हम इफ़ एल्स वाला कंडीशन लगा रहे, जो कि आप देख सकते हो, इफ़ देन और एल्स, और लास्ट में हम जब ख़त्म करेंगे इफ़ को वहाँ पे फी लगा देंगे। मैंने इफ़ एंड एल्स में अच्छे से इस कंडीशन को वेरीफाई और सेटिस्फाई किया है बताकर। तो नॉर्मली ग्रेप एक कमांड है जो कि हम चीज़ों को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करते हैं, एलएस और मैं कैट करता हूँ। ओके, समथिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट है और उसे हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो ये कुछ टेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, हमें ये लाइन चाहिए बसंती वाला। हम चेक करेंगे बसंती एग्जिस्ट करता है क्या, लाइक कैट। अब हम ये कैट करेंगे, ये पूरा खोल देगा, राइट, लेकिन हमें पूरा थोड़ी ना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पाइप लगाऊंगा और ये सारे आउटपुट का मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ग्रेप। ओके, तो ग्रेप अब चेक करेगा किस बंदे को क्या चाहिए। अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स में और मैं करता हूँ एंटर। तो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे मैंने बसंती किया तो इसने बसंती वाली लाइन को ही सिर्फ दिया। तो वैसे ही ये चेक करेगा, ग्रेप करेगा उस पूरे फाइल में कहीं एरर ऐसा कुछ है क्या, और जैसे रहेगा वो पॉप कर देगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ। आई होप आपको ये कमांड विजिबल है। और नाउ इसे मैंने रन किया। यहाँ पे मेरे पास 3 लॉग फाइल्स थे, लेट मी शो। तो यहाँ पे मेरे पास 3 लॉग फाइल से एरर लॉग और एरर 2 और यहाँ पे एरर 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रोसेसिंग एरर लॉग फाइल को चेक किया और यहाँ पे फर्स्ट में कोई भी एरर नहीं था, सेकंड में एरर था, तो इसने हमें बोल दिया एरर फाइंड हुआ इस फाइल में, और सेंडिंग अलर्ट जैसा कि हमने यहाँ पे उसे करने के लिए प्रोसेस किया था। और फाइल 2 में कोई एरर नहीं था तो इसने उस पाथ पे मूव कर दिया, राइट। सो दिस वाज द बेसिक लूप फॉर द फॉर, और हमने कई सारे यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह देखे। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, और सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड आई विल से थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।